Hello, and welcome everyone to the amazing platform of Urjavan Physics. Now, I am going to discuss the 11th most important questions for vectors, and it is also important for JEE NEET perspective. Okay, so first question you have to see on your screen. In that joining vector diagram, what is the angle between vector A and vector B? Vector A and vector B के बीच का हमें angle चाहिए. So first of all, you have to see this angle would be theta, and this is and C is equals to B by 2. The data is given C is equals to B by 2. So this angle, if we let this angle would be theta, is sin theta is equals to, in this triangle we have to you have to formula sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is b by 2 and hypotenuse is b is cancelled out, so sin theta would be half. So theta is equals to 30 degree. Theta is equals to 30 degree. So theta is equal to 30 degree, but 30 degree is not the right answer of this question, because this angle is not vector A and vector B. If vector B is parallel shifted in this direction, vector B is parallel shifted in this direction, so वेक्टर ए और वेक्टर बी का हेड से हेड जुड़ रहा है, सो दिस एंगल वुड बी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. दिस एंगल वुड बी बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. So this angle would be 150 degree, because in a straight line total angle made by 180 degree, this angle is 30, so this angle would be 150. So 150 is the right answer of this question. So option number D. D is the right answer of this question. Next question we have to see. Vector A is shown in the figure. कहता है the angle made by vector A with the positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis का बात करें तो positive direction इधर है, इसके और इसके बीच का एंगल, this angle would be 150, and 150 is the right answer of this question. 150, 150, 150, 150 ऑप्शन में नहीं given है. Okay. So I will this is clockwise direction, and we have to start solving this problem in anti-clockwise direction. So anti-clockwise direction, this angle would be vector A and x vector and positive direction of x-axis. So this angle would be what? This angle is 180. This angle is 180, and we added 30 degree in 180 degree. So right answer would be, टोटल मिला के जो एंगल आएगा 210 डिग्री आएगा, 210. सो राइट आंसर वुड बी 210. ऑप्शन में गिवन है, तो राइट आंसर वुड बी 210 degree. So next question. The resultant of vector A plus B is R1. On reversing the vector V, the resultant becomes R2. Okay. What is the value of R1 square plus R2 square? Okay, देखो now let's see everyone. This is vector A and this is vector V. And this angle would be theta. Let us suppose this angle would be theta. So R1 vector is equals to root under A square plus B square plus 2AB cos theta. इन द गिवन डाटा, हम जो यहाँ से डाटा लिए हैं गिवन डाटा, बिकॉज आर ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है R1 है, और R1 इज इक्वल टू ऐसा कुछ डाटा आ जाएगा. सो R1 का मॉड आ रहा है, ठीक बात है. तो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. यहाँ तक सही है क्या? ओके. नो, रिवर्सिंग द वेक्टर बी को अगर रिवर्स कर रहे हैं तो दिस इज द माइनस वेक्टर बी, एंड दिस एंगल वुड बी 180 माइनस थीटा. दिस एंगल वुड बी माइनस 180 माइनस थीटा. ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके. सो वी एडेड वेक्टर ए with the minus vector b. So this is the result. इसका जो रिजल्टेंट आएगा वही रिजल्टेंट दिया गया R2. So R2 is equals to what? R2 is equals to root under a square plus b square plus 2ab cos 180 minus theta. 180 माइनस का थीटा, और cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा. R2 is equals to, यहाँ से R2 का स्क्वायर हम लिखना चाहे तो R2 थोड़ा सा ना टेक्निकल एरर आ रहा है भाई. अच्छा ठीक है, ओके. सो R कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? नहीं, ओके.
यहाँ पे कट रहा है भाई। ओके 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 ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R2 का जो स्क्वायर आ रहा है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी सॉरी, ये cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, सो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, माइनस का 2ab cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर के हाथ यहाँ से रूट भी खत्म हो जाएगा। ओके, द रूट विल बी cancel out. Okay, so r1 का स्क्वायर इज दिस, r1 का स्क्वायर इज दिस एंड r2 का स्क्वायर इज दिस। If these equation are added to each other, so r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर वुड बी माइनस का 2ab cos थीटा और प्लस का 2ab cos थीटा कैंसल आउट, a स्क्वायर is equals to 2a square and b square is equals to 2b square. So answer would be root 2 common and 2 into a square plus b square. This is the answer. This is the answer. So what option matched the answer? So option number C is matched. Next question. Which of the following pair of forces will never give a resultant force of 2 Newton? Which पेयर तो हमें नहीं दिया गया है ना यार, ऑप्शन बी नहीं मिल रहा है हमें, ऑप्शन बी सी डी नहीं मिल रहा है, तो ठीक है इसको क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट ऑप्शन के साथ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the vector sum of forces of 10 न्यूटन and 6 न्यूटन can be। अच्छा, दोनों का अगर वेक्टर सम किया जाए तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, इस दोनों का अगर मिनिमम वैल्यू का बात किया जाए तो मिनिमम वैल्यू जो आएगा क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू का बात करेंगे तो दोनों का डिफरेंस इज 4, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम, दिस इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एंड दोनों का अगर ऐड किया जाए तो 16 एंड 16 इज द मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। तो इस दोनों का जो वेक्टर सम आएगा तो इसके बीच में ही क्या करेगा, लाई करेगा, तो इसके बीच में देखो 2 तो रेंज से बाहर हो गया, 8 इसके बीच में आ रहा है, 18 रेंज से बाहर है, 20 भी रेंज से बाहर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the minimum number of forces, minimum number of vector of equal magnitude, okay, required to produce a resultant vector, इसका आंसर डायरेक्ट 3 होता है। रिजल्ट मिनिमम वेक्टर चाहिए ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, नो 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 नो, 2 भी तो हो सकता है यार, मिनिमम वेक्टर 2। अच्छा 1 तो होगा नहीं, 1 तो होना ही नहीं है, 1 अगर कहीं भी 1 लगा रहे तो इसका जो रिजल्टेंट है 0 तो होगा नहीं, तो मिनिमम 2 चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए हमें 2। अच्छा, हम अगर मान चलिए फोर्स वेक्टर है, इसका फोर्स 10 न्यूटन है और एक दूसरा 10 ही न्यूटन का बोला गया है, इक्वल मैग्नीट्यूड चाहिए, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाते इन अपोजिट डायरेक्शन, दूसरा फोर्स भी लगाते 10 न्यूटन का, तो नेट इफेक्टिव क्या आएगा, रिजल्टेंट इसका 0 आ जाएगा, रिजल्टेंट जो आएगा इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम इज 2 चाहिए। 3 पे भी 0 आ जाएगा, 3 पे भी 0 आ जाएगा, अब इक्वल मैग्नीट्यूड का है, अगर आप उसको 120 डिग्री पे रखो तो 120 डिग्री पर अगर रखा जाए तो यहाँ पे रिजल्टेंट 0 आ जाता है, 4 में भी 0 आ जाएगा, 5 में भी 0 आ जाएगा, मोर देन 4 में भी आ जाएगा, तो मिनिमम कितना, मिनिमम 2 चाहिए। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू सी, वेक्टर ए का मॉड हमें दिया गया वेक्टर बी मॉड, देन फाइंड द वेक्टर ए माइनस बी चाहिए, ए माइनस बी का मॉड चाहिए। अच्छा, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज द माइनस वेक्टर बी, दिस इज माइनस वेक्टर बी एंड we added this angle would be what, this angle would be 120 degree and we add vector a of minus of vector b, if we added vector a plus of minus vector b, so mod of a minus will be what, this is root under a square plus b square plus 2ab cos 120, so a square is 16, b square is 9 plus 2a is what, a is 4 and b is 3 and cos 120 का वैल्यू अगर फाइंड आउट किया जाए, cos 120 इज 90 प्लस 30, राइट 30, ओके ओके, और cos 90 प्लस 30 इज माइनस साइन 30, तो माइनस का हाफ आ जाएगा यहाँ पे, cos 120 का वैल्यू जाएगा माइनस का हाफ, तो यहाँ से 2 से 2 कट रहा है और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12 और माइनस का 12 आ जाएगा, तो रूट अंडर 25 माइनस का 12 is what, root under 13, root under 13 is the right answer of this question, option number C। next question we have to see,
two vector A and V have equal magnitude. अच्छा, वेक्टर A and वेक्टर V, वेक्टर A का जो मॉड है वेक्टर V के मॉड के इक्वल है. ओके, नो प्रॉब्लम. The magnitude of A plus B is n times the magnitude of A minus B. ओके, हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है और इसका मैग्नीट्यूड हम x मान ले रहे हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. दोनों का बोला गया कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा यानी मॉड ऑफ ए प्लस बी इज n टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस का बी है. ओके, सो n टाइम्स, तो द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड बी. अच्छा, एंगल से दोनों के बीच का वेक्टर का. ओके ओके. अच्छा, मॉड ए प्लस बी है तो इसको लिख सकते हैं. इसका जो मॉड आएगा रूट अंडर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा. और n टाइम्स ऑफ इसको लिख सकते हैं ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा. सही बात है. ओके, दोनों तरफ से ना स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे एक जगह x का वैल्यू रखते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर की है तो इधर n स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा. सही बात है. ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा. सही बात है. और यहाँ से किया जाए तो यहाँ से क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस थीटा. और हमें चाहिए क्या, थीटा चाहिए. ओके, तो हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए. पेन का ना कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं. अभी कलर कौन सा कलर रखा जाए, ग्रीन रखते हैं. ग्रीन उगेगा क्या, ब्लू आ गया. ओके, नो प्रॉब्लम. देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. इस इक्वेशन को सॉल्व करना इज वेरी चैलेंजिंग टास्क. नो, दिस इज नॉट चैलेंजिंग. वी हैव टू सॉल्व इजीली. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, कॉस थीटा जितना भी उसको एक तरफ कर लेते हैं. देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में माइनस 2x स्क्वायर एन स्क्वायर है, माइनस का 2x स्क्वायर एन स्क्वायर, उसको उस तरफ करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा. और पहले से और इस 2x स्क्वायर को जो है ना हम लोग उधर भेज देते हैं. ठीक बात है. यानी इसको इधर कर रहे हैं, इस वाला टर्म्स को ना, इस वाला टर्म्स को हम लोग इधर कर रहे हैं, इस साइड कर रहे हैं, और इस वाला टर्म्स को हम इस साइड कर रहे हैं. देखो करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से पहले से इस साइड देखो 2x स्क्वायर कॉस थीटा है प्लस का 2x स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इधर करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर एन स्क्वायर पहले से है माइनस का आ जाएगा 2x स्क्वायर. ओके, और ना हम यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है. अच्छा, 2 यहाँ से देखो क्या इस दोनों टर्म से ना 2x स्क्वायर कॉस थीटा कॉमन आ रहा है. 2x स्क्वायर कॉस थीटा कॉमन तो बचा क्या 1, 2x स्क्वायर कॉस थीटा कॉमन तो प्लस का n स्क्वायर बच रहा है. ओके, नो प्रॉब्लम. इधर से अगर बात किया जाए तो 2x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2x स्क्वायर कॉमन. ओके, तो बच क्या रहा है, n स्क्वायर माइनस का 1 बच रहा है. अच्छा, 2x स्क्वायर कैंसल आउट, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, n स्क्वायर माइनस 1 बटे n स्क्वायर प्लस 1. सही बात है. सो थीटा वुड बी व्हाट, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1. सो राइट आंसर वुड बी व्हाट, cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1. cos इनवर्स सबसे पहला नंबर तो कैंसिल cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1. राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. So the in vector diagram shown in the figure where vector r is the resultant of a and b. Okay, r is equals to r का मैग्नीट्यूड हमें दिया गया, r का जो मैग्नीट्यूड हमें b अपॉन रूट 2 दिया गया. व्हाट देन द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा. ओके, थीटा का वैल्यू. अच्छा, इसमें तो हम यहाँ पे ना साइन थीटा लगा देते हैं, क्या कि हमको परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन पता है और यहाँ पर रिलेशन दिया भी गया है. तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर b अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. b कैंसल आउट और sin थीटा का वैल्यू 1 बाय रूट 2, सो थीटा वुड बी 45. थीटा वुड बी 45. राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू see on your screen. Two forces equal in magnitude. Okay, equal in magnitude
have resultant magnitude equal to the either of two. Okay, दो वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट भी जो है इक्वल ही है. The angle between the forces is what? Angle between the forces is what? Angle between forces is what? निकाल सकते हैं, 120 आ जाएगा. देखो, मान लीजिए ये वेक्टर क्या है, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो आप कर ले. इसके बीच का एंगल क्या है, यही हमें ज्ञात करना है. और इसका जो रिजल्टेंट आता है ना यार, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एफ ही आता है. तो रिजल्टेंट भी एफ आ रहा है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला. तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस थीटा. यहाँ से हमें थीटा निकालना. ओके, इसको इधर किया जाए तो एफ स्क्वायर बराबर 2 एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस थीटा. अच्छा, इस 2 एफ स्क्वायर का अगर बात किया जाए तो इधर आगे कितना आ जाएगा, माइनस का एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एफ स्क्वायर कॉस थीटा. और एफ स्क्वायर विल कैंसल आउट, सो कॉस थीटा वुड बी माइनस का हाफ. और कॉस थीटा माइनस का हाफ होता कितना पाया, थीटा इज इक्वल टू जब 120 डिग्री हो जाए. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिर से एक आ गया. ओके, नो प्रॉब्लम. फिर से मतलब ये एक सेट का क्वेश्चन था, वो 10 तक हो चुका है कंप्लीट, एंड नेक्स्ट सेट स्टार्ट हो रहा है फिर से क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ भी 20 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद सेशन स्टार्ट खत्म हो जाएगा. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन फाइंड वेक्टर ए डॉट बी. दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए. तो डॉट प्रोडक्ट आई गुना आई किया जाए, आई मल्टीप्लाई बाय आई इज 4 प्लस 6 माइनस का 6, माइनस प्लस खत्म, तो 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ पार्टिकल मूव फ्रॉम द पॉइंट टू पॉइंट, ओके इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3 minus 2 I cap, 3 minus 2 I cap is I cap, 4 minus 3 तो j cap, 1 देगा, 5 minus 5 तो 0 के कैप, प्लस का 0 के कैप. ऐसा देखो कहीं मिल रहा है, मैच कर रहा है, I प्लस जे आएगा, I प्लस जे, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वेक्टर डायग्राम shown in the figure where r is the resultant of, ये तो क्वेश्चन किए हैं, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 45. ये क्वेश्चन किए इन द प्रीवियस क्वेश्चन मैच्ड. द रिजल्टेंट ऑफ two forces 2p and root p is इतना. द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, ओके, रिजल्टेंट इज रूट tan p इज इक्वल टू रूट अंडर 2p का स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2a b cos theta. What is the angle? Okay, if we square the both side, we squaring both side, so will be tan p square is equal to 6p square plus 2 to the 4 and 4 root 2 p square cos theta. तो इसको अगर इधर भेजा जाए तो माइनस का, और ये 4 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 2 पी स्क्वायर कॉस थीटा. पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट एंड 4 से 4 कैंसिल आउट एंड कॉस थीटा वुड बी cos theta 1 by root 2, so theta is equals to 45 degree, so theta is equals to 45 degree. Next question, if vector a common and vector b common find. अच्छा, ये तो हम सॉल्व किए हैं, रिवर्स किए हैं. इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी था, रूट अंडर 13. इसको रिवर्स करना है, ये वेक्टर बी आ जाएगा और इस ये वाला जो एंगल हो जाएगा 120 हो जाएगा, एंड वी हैव टू फाइंड इजीली वेक्टर a is equals to this, कहते हैं is inclined at an angle theta with the x, तो find x. okay, no problem. this is x axis and this is y axis and this is y axis. This is x axis, this is x and this is y, and vector a is 6 I cap, this is 6 I cap and this is 8 j cap, this is 8 j cap, and this is the vector a. This angle is theta is given in this question because a vector a is inclined at angle theta with the horizontal x-axis. Okay, so we have to find theta. So I have to apply tan theta in this right angle triangle. So tan theta is equals to perpendicular upon base
so it is cut out and 4/3 and theta is equals to 53 degree. 53 degree, 50, 53. Next question. The vector A, this make an angle theta with the positive direction of x-axis. What is the value of cos theta? अच्छा cos theta ये डायरेक्शन कोसाइन से ना सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन से ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन हमको cos चाहिए, तो x एक्सिस के साथ एंगल पूछा जा रहा है, तो वैल्यू ऑफ cos थीटा तो डायरेक्शन कोसाइन से सॉल्व हो जाएगा। तो x जो आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसको रखना है डिवाइड बटे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखना है, डिवाइडेड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। सो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्शन कोसाइन से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन एरोप्लेन इज हेडिंग नॉर्थ ईस्ट एट a speed of 141.4 मीटर पर सेकेंड। कहता है द नॉर्थवर्ड कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज, नॉर्थवर्ड कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। ओके, दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। ओके ओके, this is x and this is y direction. First of all, aeroplane is heading northeast direction, अच्छा northeast direction, okay, no problem, northeast direction we have to draw। this is east and this is west, east west north, this is south। और कोई एरोप्लेन है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहाँ से एंगल इसका जो है 45 डिग्री है और इसका जो वेलोसिटी वेक्टर जो है 141.4 है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द नॉर्थवर्ड कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। अच्छा ये वाला हमको कंपोनेंट चाहिए, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 141.4 sin 45 एंड दिस, और ये वाला जो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा क्या आ जाएगा 141.4 cos 45 आ जाएगा। दिस इज हमको यही निकालना है, यही हमको निकालना है। तो 141.4 cos 45 है तो 1/√2 आ जाएगा। अच्छा हम इसको इतना तो लिख सकते हैं, इसको 100√2 तो लिख सकते हैं, 100√2 लिख सकते हैं, और √2 से √2 कैंसिल आउट आ जाएगा, तो 100 would be right answer, 100 would be right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle made by a vector this y axis, okay, this is x axis and this is y axis। वेक्टर a √3i, ये √3 है, i है, और y मतलब y डायरेक्शन में जो है j कैप है, एंड दिस इज द वेक्टर a, दिस इज वेक्टर a, एंड फाइंड आउट द एंगल विद द वाई एक्सिस। हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल हमको निकालना है, दिस एंगल हमको निकालना है। सबसे पहले हम अगर इस एंगल का बात करते हैं तो इसको θ1 मान लेते हैं, तो θ1 हमें tan थीटा लगाते हैं बिकॉज परपेंडिकुलर एंड बेस इज गिवन, सो tan θ1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो θ1 इज इक्वल्स टू 30, θ1 is equals to 30, so what, so this angle would be 60 because these angles are perpendicular to each other, so 60 is the right answer, 60 is the option number A। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है if the horizontal component of a velocity vector make an angle 60 with the horizontal direction is 5 meter per second, okay, then the value of velocity vector, okay, this is x direction and this is y direction because यहाँ पे बोला जा रहा है कोई वेलोसिटी वेक्टर है, कोई वेलोसिटी वेक्टर है v, कोई वेलोसिटी है वेक्टर v, make an angle 60 with the horizontal direction is 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका वेलोसिटी वेक्टर है वो 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया, 5 मीटर्स पर सेकेंड दिया गया। इसी वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड दिया गया वेलोसिटी वेक्टर से। अच्छा अगर ये रहता, इसका जो वैल्यू है v cos 60 आता, यानी v cos 60 का वैल्यू ही हमें 5 दे दिया गया है। अच्छा तो यहाँ से v का वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा 5 अपॉन cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√2
1/10 2 होता है और ये 2 चला जाएगा ऊपर। वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी वेक्टर इज व्हाट 10 मीटर पर सेकेंड। cos 60 इज हाफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा हम लोग ने दो सेट कंप्लीट कर चुका है, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ तक ने आप लोगों को देखा तो आप लोगों को बहुत बड़ा ही क्या चाहिए, थैंक यू चाहिए। आप लोगों को हम थैंक यू दे रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने इतना अच्छा लेक्चर वो कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच गाइस। हैव ए गुड डे एंड नाइस नाइट।